tuning in to Mirror Now, a big focus. Well, the Railway Board has finally detailed the tragic accident in Odisha's Balasore that killed 275 people and injured over 1,000 people. As per the information, there were 4 tracks at the spot where the accident occurred. Now, 2 were occupied by goods train and 1 each by Coromandel Express and Yashwantpur Express. Only the Coromandel Express is said to have met with an accident when it collided with a goods train. Some of the derailed parts of this train impacted the Yashwantpur Express and its 2 coaches also derailed. Now, as per the railways, preliminary investigation suggests that there was a problem in signalling, but that is still being investigated. The railway minister said the root cause of the incident and the people responsible for it have been identified and will be revealed soon. शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप मेन लाइन कहते हैं। उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। Kavach is there, it is on a rollout. Everything to make sure that it is rolled out at the fastest pace possible is there, but you must understand the quantum of the work involved and the quantum of the money needed and the way the industry is supposed to respond and react and generate the equipment that is required to be placed in all along the track and on the locomotives. Then what does Kavach do? In this particular situation, what could have Kavach done? Had Kavach been here, it would have been on the locomotive, it would have been on the track. Now, from what we understand what happened, this locomotive, even if it went on a wrong route and it found that the track ahead was occupied, it had only barely maybe 100 meters to go before that obstruction was to come. So even if the Kavach would have applied brakes on detecting that the route ahead is obstructed, it for a train moving at 130 kmph, the braking distance is about 600 meters. So it went and it would have gone and hit a 100-meter obstruction. It is expected that it will understand the obstruction at a sufficient distance. But in this particular case, because the route was set for the main line which was not obstructed, the system would not have reacted to it because it would not have got the input that there is an obstruction ahead. बालेश्वर रेलवे एक्सीडेंट में 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, RMLA हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है। देखिए, मैं फिर आज इस घटना के ऊपर अत्यंत कष्ट के साथ दुख जताता हूं। अपना समवेदना सारे मृतक परिवारों के प्रति है, जो आहत हुए हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल में हैं, जो घर लौटे हैं, सभी की चिंता हम लोगों के पास है। और कल प्रधानमंत्री जी सबको संभालने के लिए खुद आए थे और
हमारी दायित्व बनती है कैसे ये नॉर्मलसी बढ़े, कहीं नॉर्मलसी हो जाए। रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं और रेस्क्यू काम कल से हो गया था। कुछ लोगों की जान गई है, अत्यंत कष्ट की खबर है ये, और सभी को जो आहत हुए हैं सबकी चिंता किया जा रहा है। फ्री ट्रेन चलाया गया है, लॉजिस्टिक की व्यवस्था किया जा रहा है, घर तक कैसे वो जल्दी ही पहुंचे उसकी रेलवे की ओर से सब चिंता किया जा रहा है। Meanwhile, a PIL has also been filed in the Supreme Court over the incident, seeking a probe by an expert panel which is led by a retired Supreme Court judge. Our petition is focused upon the incidents and how to prevent these accidents. So our prayer is that a expert committee which shall be headed by a retired justice of the Supreme Court of India shall be constituted, and that expert committee shall give its recommendations and measures and suggest the measures and steps that how to strengthen the railway protection system in the future. And one of the prayer is also that a cover system shall be implemented at the earliest. And third, a expert committee shall also be constituted under the chairmanship of Supreme Court retired justice to inquire and to go through the deep root cause of this Odisha train accident. On the other hand, Railway Minister Ashwini Vaishnav remains in Balasore. He has taken stock of the restoration work and claimed that the root cause of the accident is known. He said that in the accident, it happened to seem like there was a change in the electronic interlocking. Now, meanwhile, the opposition demands introspection. Kapil Sibal has questioned giving multiple ministries to the Railway Minister. He said that there is no railway budget and no accountability. Now, after the horrific accident, people want the accountability to be fixed. इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे? वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है, वो या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो, लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। जो एक्सीडेंट में जाने गई उसके जाने का वक्त नहीं था, एक्सीडेंट से गए। कोई भी मुआवजा, कोई भी कॉम्पनसेशन एक जिंदगी को वापस नहीं ला सकता है, और इसीलिए जान की सुरक्षा को हर वक्त पे हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर माल गया, प्रॉपर्टी गई, हुआ तो वो आ भी सकता है वापस, पर एक बार जिंदगी चली जाती है वो वापस नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे उसके बीच में भी जाएंगे, विस्तार में उसकी जांच भी होगी, लेकिन अभी घायलों को पूरी तरह से मदद करना, उपचार करना, उनको स्वस्थ करना, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे इस दुर्घटना के कारण, उनके परिवारों के दुख के समय हम उनके साथ में भी हैं। 10-10 लाख रुपए मृतकों के लिए घोषणा भी की गई है। जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख रुपए, और जो माइनर इंजरी से 50,000 रुपये उसके लिए घोषणा भी की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पर कोई राजनीति करनी चाहिए। कि देश के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, और इस हादसे के बाद सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं, और आगे भी जो उठाने के वो भी उठाएंगे।
सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। देखिए, ऑपोजिशन तो जो मर्जी उसको कहता रहेगा। ये इमीडिएट जो रियायत दी गई है और सहायता दी गई है, क्या उन्होंने कभी सहायता नहीं दी क्या? ये उन्होंने जब 28 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, जब उन्हीं की सरकार थी, उससे पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ से बहुत दूर, ज़्यादा नहीं, गुड़गांव के पास, जब 500 के करीब लोग बाग मरे थे, उसके अंदर दोनों ट्रेन ऊपर चढ़ गई थी। कितना मुआवजा दिया था उस टाइम? तो ये फालतू की चीज़ें हैं जो कि विपक्ष के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो इन चीज़ों के ऊपर वो केंद्रित हो रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि सरकार ने एक्सीडेंट कराया क्या? ये बचपने की चीज़ें जो है ना, ये नहीं, मेरे को लगता है कई बार वो बहक जाते हैं। विपक्ष के पास कुछ है नहीं और, तो ये समय बचकाना बातें बोलने का नहीं है। टाइम आएगा, सरकार जहाँ पे जवाब देना वहाँ पे जवाब देगी। ये ना दिखना होते, क्योंकि बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहने के साथ अपने इरादों को निभाना दूसरा होता है। कथनी होते और करनी, कथनी और करनी में फर्क ना होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। On the other